हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है हम आपके सामने फिर से एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा स्टॉक है? तो ये जो स्टॉक का जो नाम है, इसका कंपनी का नाम है नेटको फार्मा। सो नेटको फार्मा पाइपलाइंस ऑफ कैंसर ड्रग्स एंड जेनरिक रीच 50 प्लस ग्लोबल मार्केट्स। कुड दिस बी योर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर? Let's discuss on the same. Netcos is a leader in affordable medicines, but recently US FDA observation have raised some concerns. In next 15 minutes, I will show why this stock could be a gem, starting with what they do and their production pipeline. First, we will discuss their business model, how the Netco makes the money. Netco develops and sells affordable medicines and chemicals like a factory for life-saving drugs. So they work on three segments. The first is finished dosage formulation, which is FDF, 70% of revenue. They make generic drugs for cancer, hepatitis C, and chronic diseases sold in the US, India, and 50 plus other countries. These are called finished dosage formulas or FDF, meaning ready-to-use medicine-like tablets. Active pharmaceutical ingredients API, which is of business is of 20%. They produce the raw material for drugs called APIs at plant in Hyderabad used by other drug makers. And they also work on a crop protection where their revenue is of 10%. They sell chemicals to protect crops like pesticides, boosting farm yields. Transitions. Now you know what they do. Let's see their product pipeline. So what is the future revenue guideline of Netco? Netco order book in their guideline for drugs and contracts like a roadmap for a future revenue. They are launching a generic like a semaglutide for diabetes and risdiplam for spinal muscular atrophy, targeting US and emerging market. As you know, friend, these are the most critical or this is burgeoning in a very pace. These both diseases, the one is diabetic and the second is a muscular atrophy. In Q4 2025, they signed a new export deals with 60% of revenue from US and Canada. The pipeline ensure growth, but a US FDA delay could slow little approval. Why the Netco's growing? Let's check the industry growth as well. The global generic market is growing very rapidly, and the Netco is in our driver's seats. The generic market is worth of $400 billion, growing 6 to 8% yearly, driven by a demand for affordable drugs. US healthcare reform and India's export push of fuels to Netco sales. Their focus on cancer and niche drugs faces less competitions. They approved by US FDA and WHO, serving 50 plus of countries. What's the Netco's growth plan? Let's see. Netco investing 500 to 600 crores in research and developments for cell and gene therapies over 1.5 to 2 years. Their semaglutide generic could capture a $20 billion market by 2027. They have cut debt to zero net with a 3,000 crores of cash pipeline as of March 2025. Financial 2025, this saw a record revenue of 4,784 crores, up 16%, and profit up by 36%. Growth looks strong, but what are the market risks? The US FDA issued several observations at their Kothur plant and one of at a Megaguga in June 2025, causing a stock drop. Possibly a US tariff on pharma import could also cut our revenue in financial year 2026 by somewhere around 20%. Increasing in research and development cost may lower a financial year 2026 profit by 30%. The stock is down 22% already in a past 1 year. Now let's look at their number. So we will discuss on the fundamental part. So the Netco Pharma Limited has a market capitalization of 16,610 crores. The current price is 927 and the highest in 52 week is 1639 and the lowest is 660. Lowest say जो है, it has already recovered still 927, but still it is down somewhere around 43% from all time high. The stock P is 8.82, which is very reasonable if you will compare to industrial PE of 33.3. ROCE and ROE is fantastic, 32.8 and 28.0. Book value of current stock is 425, whereas the current price is somewhere around 2 times of their current price. Correct. The dividend yield is 1.03%, face value is 2, intrinsic value is 1328, whereas the current price is 927. तो इंट्रिंसिक प्राइस से भी जो है हमें कम प्राइस में अभी देखने को मिल रहा है. नंबर ऑफ शेयर इसके मार्केट में 17.9 करोड़ है.
पैग रेशियो है 0.26 है, 1 से कम है तो ये काफ़ी बेहतरीन है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो नेग्लिजिबल है 0.04। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 96 है जो कि एक्सीलेंट है। CFO बाय पैट, जो इतना ये प्रॉफिट बनाते हैं उतना ही जो है ये कैश में भी कन्वर्ट कर रहे हैं 90% के आसपास, विच इज़ एक्सेप्शनली गुड। हाई प्राइस ऑल टाइम जो है वो 639 के आसपास था। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसका 2.18 है जो कि काफ़ी रीजनेबल है, जहाँ की इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3.41 के आसपास में है। आर्टिस्टिक स्कोर जो है वो 8/9 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर जो है अगर हम जो है 10 साल की प्राइस को मूवमेंट को अगर हम देखें तो लास्ट जो इसने जो हाई जो बनाया था 2017 में, उसके बाद में एक हाई इसने 21 में बनाया था, और अभी जो है हाई बनाने के बाद में यहाँ पे जो है शार्पली डाउन आया हुआ है। इसका रीज़न जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि FDA का जो है यहाँ पे कंसर्न आया है इनकी कुछ फैक्ट्रीज में, जिसकी वजह से जो है इसमें शार्प करेक्शन देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, ये जो है सर्विस वगैरह होंगे उसके बाद में जैसे ये इशू रिजॉल्व होगा तब जो है इसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो हमें ऐसी अच्छी कंपनीज में जहाँ पे इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है जब स्टॉक की जो मूवमेंट जो है काफ़ी डाउन हो जाती है, तो ये एक अच्छा टाइम होता है इसको एक्युमुलेशन करने का। अब जो है यहाँ पे अगर जो है मैं इसकी पीई की बात करूँ तो पीई जो है अगर मैं 10 साल का देखूँ तो मीडियन पीई जो है आपका 26 के आसपास में है। अभी जो है आपके पास में जो है 8.4 के आसपास में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की भी बात करूँ तो 26 का मीडियन है और अभी जो है आपको 8.8 में ट्रेड कर रहा है। 3 ईयर्स में भी मीडियन से डाउन है और 1 ईयर्स में भी मीडियन से डाउन है। वहीं पर ही जो है इसको प्राइस टू बुक से अगर हम कंपेयर करें तो इसका मैक्सिमम प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 8 के आसपास में गया है। मीडियन जो है वो 3.5 है और अभी जो है हमें जो है ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है 2.2। तो लास्ट जो है इसका मीडियन 2.1 2.2 जो है मार्च 2023 में गया था। उसके बाद में आप देखो स्टॉक की मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट देखने को मिली थी। अभी जो है इसका अगेन इसी लेवल पे जो है 2.1 के आसपास में प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। चाहे वो 10 साल 5 साल या 3 साल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के एवरेज मीडियन से जो है हमें काफ़ी डाउन मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम जो है प्राइस टू बुक या पीई रेशियो में अगर इसके कॉम्पिटिटर या इसको खुद के इसके हिस्टोरिकल वैल्यू से कंपेयर करें, दोनों ही केस में जो है हमें ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद में इसके प्रोस देखा जाए तो कंपनी ने जो रिड्यूस डेट करे हुए हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और इसका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का वो 33.4% CAGR से ग्रोथ करा हुआ है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर से जो है अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो है प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर कंपेयर करूं तो ये वन ऑफ द लोएस्ट में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं ड्यू टू FDA कंसर्न। सेल्स जो है इनकी जो है जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं 3 साल में जो है इन्होंने मैक्सिमम सेल्स ड्राइव करा हुआ है 31.57% जो कि एक्सीलेंट है। ROCE और ROE जो है जितने भी इनके पीयर्स में है जो सबसे बेहतरीन ROCE जो है 26.86 है और ROE जो है 23.85 है। तो ये जितने भी पैरामीटर हैं सब में जो है सबसे बेहतरीन जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं। पैग रेशियो 0.26 है, काफ़ी बेहतरीन है। द ओनली कंसर्न वी हैव टू सी इज FDA। ऑल टाइम हाई से जो है हमें जो है ये 43% में जो है ये डिस्काउंट में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली सेल की अगर हम बात करें तो 2022 से जो है अभी तक जो है जो 597 करोड़ की जो सेल होती थी वो 1221 करोड़ की सेल में पहुंच चुका है। वहीं पर ही ग्रोथ अगर जो है अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर का देखें तो 19%, 32%, फिर दिसंबर में जो है ये माइनस में सेल गई थी। वहीं पर ही मार्च में जो है ये फिर से 14% से जो है सेल हमें यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी जो है लाइक वाइज जो है आप अगर हम जो है 4 लास्ट के जो है क्वार्टर का जो है अगर हम देखें तो 4 क्वार्टर का देखें तो 59%, 83%, -38% एंड 5% के आसपास में जो है हमें सेल्स ग्रोथ होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम 10 साल का अगर हम डेटा देखें 2014 से 2025 तक का जो है 739 करोड़ का जो 739 करोड़ की जो सेल जो होती थी वो आज 4430 करोड़ के आसपास में सेल पहुंच चुकी है। अगर मैं जो है लास्ट 2 साल की अगर मैं बात करूं तो 47% का ग्रोथ जो है इसने 2024 में दिखाया था और 2025 में जो है 10.77% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो काफ़ी फैंटेस्टिक ग्रोथ है इसमें। वहीं पर नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर जहाँ पे 1388 करोड़ का प्रॉफिट था, इस ईयर जो है वो 1883 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर जो है इसका जो है सेल्स ग्रोथ अगर हम 10 साल में देखें तो 18% है। वहीं पर प्राइस की मूवमेंट मात्र 7% से हुई है। लाइक वाइज 5 साल में जो है 18% से और प्राइस की मूवमेंट 5 साल में 8% से हुई है। लाइक वाइज सेल्स ग्रोथ जो है 3 साल में 32% से और 3 साल में प्राइस की मूवमेंट 13% से हुई है। सबसे बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 12 ट्रेलिंग मंथ में 11% का सेल्स ग्रोथ तो हुआ है लेकिन प्राइस जो है वो -21% जो है वो टूट चुका है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है इस स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का, 3 से 5 साल का अपना व्यू बनाने का। यहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10, 5, 3 साल का जो एवरेज 19, 18 और 24% रहता था, वहीं पर लास्ट ईयर का जो है वो हाईएस्ट लेवल 28% के आसपास में ट्रेड कर रहा है जो कि काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। यहाँ पे जो है रिजर्व ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूँ तो 4837 करोड़ का जो मार्च 2023 में जो रिजर्व रहता था वो बढ़ के जो है लास्ट ईयर 5817 करोड़ का हुआ था और मार्च 2025 में जो है ये 7571 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है हमारे लिए।
CWIP में भी जो है ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। R&D में जो है ये बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। देखो इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो R&D के ऊपर जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड नेटको इज वन ऑफ दोज। तो आने वाले टाइम में जो है जितने भी ये R&D में पैसा खर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल पे आउट इन फ्यूचर। वहीं पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो वो आप देख लीजिए हमेशा जो है ये पॉजिटिव रहा है। CFO बाय एबिटा जो है वो 90% के आसपास में है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। वहीं पर डेटर डेज जो है इसके 109 से 103 दिन हुए हैं, जो कि पॉजिटिव है। इन्वेंट्री डेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 357 से 407 हुआ है, जो छोटा सा कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मींस नेगेटिव है, बड़ा कंसर्न नहीं है बट ये नेगेटिव में काउंट होगा। डेज पेबल जो है वो 120 से 145 हो गए हैं, अगेन नेगेटिव काउंट है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है 345 से 362 है, अगेन नेगेटिव है, बट अगर आप इसका प्रीवियस डेटा देखोगे तो वो 500 डेज भी रहा है, 394 डेज भी रहा है। तो वहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टिल जो है अभी भी जो है काफी अच्छी जगह में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ROC जो है इसका फ्लक्चुएशन है लास्ट 4 ईयर में जो है 4%, उसके बाद 18%, लास्ट ईयर में 30% और इस बार जो है 33% का जो है ROC हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग अगर हम पैटर्न देखें तो जून 2022 से 48.8% की जो शेयर होल्डिंग जो थी वो बढ़ के अभी मार्च 2025 में 49.56% की हुई है। तो यहाँ पे जो है प्रमोटर्स जो है इसमें जो है अपना जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और इसको जो है कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। वहीं पर FII की जो होल्डिंग 11% की होती थी 2022 में वो बढ़ के जो है 17.50% के आसपास में हो चुकी है। वहीं पर ये जो DII की होल्डिंग जो 15.30% की होती थी वो घट के जो है अभी 5.64% की हो चुकी है। वहीं पर ही जो है DII की अगर मैं जो है लास्ट दिसंबर 2024 और अभी के बाद की बात करूं तो वहां पे जो है थोड़ी सी हमें यहाँ पे अगेन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, पब्लिक में जो है जो 24-25% की जो होल्डिंग होती थी वो कंस्टेंट है, समवेयर अराउंड सेम ही है, अभी 26 से 27% के आसपास की जो होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है। इसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको स्टडी करी वहीं पर ही आप एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल को आप डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा, ये जो है आपका कन्विक्शन बिल्ड करने में आपकी। अब चलते हैं हम इसकी जो है टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो ये जो है मैंने जो है 1 वीक का जो है वो चार्ट लगा रखा है। आप दोस्तों देखो कि ये जो है एक पैटर्न बना रहा है 2014 से, ऑलमोस्ट 10 साल से ये इस पैटर्न में काम कर रहा है। इस रेंज पे जहाँ भी आता है तो यहाँ पे बाउंस बैक करता है। अब जो है इस रेंज के पास में है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में जो है अभी जो है यहाँ से जो है ये अपवर्ड की डायरेक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूसली जो है इस लेवल पे जब भी आता है ये सपोर्ट ले रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रही है कि इसने जो ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो ऑल टाइम हाई इसने यहाँ बनाया था। ऑल टाइम हाई जो है इसने ये कब बनाया हुआ है 2017 में। तो 2017 से अगर हम जो है इसका प्रॉफिट अगर कंपेयर करें तो बिजनेस जो है ये 2000 से 4000 हो चुका है, मींस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और वहां पे जो प्रॉफिट जो 500 करोड़ के आसपास का जो रहता था वो 3 गुना से भी ज्यादा 3.6x के आसपास में हो चुका है, 1800 के आसपास में। तो आप ये देखो कि लेवल जो है आपका जो 2017 का जो लेवल है उस लेवल से भी डाउन में आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है। द ओनली स्मॉल कंसर्न इज FDA, जो FDA की जो अभी जो है यहाँ पे विजिट हुई है, यहाँ पे इन्होंने कुछ कंसर्न जो है यहाँ पे दिखाए हैं। बट ये जो है क्या आपको लगता है कि ये कंसर्न जो है या क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा? डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट जो है डेफिनेटली कर सकता है। यहाँ पे एक चैनल जो है ये बना रहा है, अगर मैं आपको उसको डे चार्ट में दिखाऊं तो ये देखिए एक लंबा चैनल जो है यहाँ पे बना चुका है। यहाँ पे काफी बेहतरीन जो है हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो है जैसे ही ये इस लेवल के जो है ऊपर जाता है तो एक जो है अच्छी मूवमेंट जो है यहाँ से भी दे सकता है और जो है आने वाले टाइम में जो है ये काफी जो है बेहतरीन जो है हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हमारा जो है पार्टनर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है आपको स्टडी करनी है। ये जो अभी करंट लेवल है, अगर मैं यहाँ से ऑल टाइम हाई की अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे हमें 75% का जो अपसाइड है देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये आने वाले जो है 3 से 5 साल में जो है इजिली ये टारगेट अचीवेबल है और अचीव होना चाहिए। जैसे इनके कंसर्न FDA वाले कंप्लीट होते हैं तो इसमें जो है एक बड़ा मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है। नेटको में जो है ICICI डायरेक्ट ने जो है काफ़ी टाइम पहले जो है 7 अक्टूबर को जो है इसमें एक स्टडी भी करी थी जब उसका प्राइस 1375 था। अभी जो है इसका प्राइस इससे जो है ऑलमोस्ट आपका 30% डाउन है। इन्होंने जो है टारगेट 1675 का दिया हुआ है जो कि ऑल टाइम हाई के पास में है, जो हमने टारगेट यहाँ पर लिया हुआ है। तो 1675 के अगर ये आसपास में पहुंचता है तो हम देख लेते हैं कि कितनी मूवमेंट होती है। तो 1675 में जो 78% की जो है मूवमेंट हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो ये ICICI की जो रिपोर्ट जो है ये भी आप डेफिनेटली गो थ्रू करिए कि इनका जो है कन्विक्शन लेवल क्यों ये जो है इसके ऊपर इतना है, क्यों इनका कन्विक्शन लेवल कह रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ये ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है आप डेफिनेटली इसमें गो थ्रू करिएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से जो है मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप इसी वीडियोस को जो है शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो है
मेरी वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में शेयर करिए और उनको बताइए कि किस तरीके से जो है हम एक कंपनी को एनालाइज करके जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव कर सकते हैं, कहाँ पे जो है हम अपना व्यू जो है 3 से 5 साल की तरफ रख के जो है एक कंपनी के साथ में स्टे रह के फोकस्ड रह के उसमें कन्विक्शन बना के जो है हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। लास्ट में जो है वीडियो का डिस्क्लेमर आपके सामने है, हम किसी भी शेयर को लेने या बेचने के लिए कोई भी जो हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं। आप जो है अपने एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट न्यू वीडियोस ऑफ न्यू स्टॉक। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू share, like and comments on my videos. Thank you, see you in the next video, take care.